कृषि जागरण आपके हित के लिए नई नई पहल करता रहता है और आपके लिए नई नई जानकारियां लाता रहता है। इसी संदर्भ में आज कृषि जागरण की टीम पहुंची है दिल्ली के प्रगति मैदान में और यहाँ पर लगा है इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल। जी हाँ साथियों, नमस्कार, मैं कल्याणी, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और आज हम देखेंगे कि इस मेले में किस किस प्रकार के ड्रोन लगे हुए हैं, किस प्रकार से ड्रोन महोत्सव एग्रीकल्चर और डिफेंस के लिए कितना प्रभावी होगा। आइए देखते हैं। Drones are obviously a core part of our own contribution towards the nation building story. We believe that the future of drones is going to be the future of warfare, it is going to be the future of the farmer, and it is going to be the future of logistics, how India will move material going forward as well. So, as part of this entire drone ecosystem, we believe that there is significant potential thanks to the Honorable Prime Minister's vision and focus on drones. We believe that there is going to be significant, I would say, ecosystem building itself, and there is going to be a lot of indigenous manufacturing which is made in India, and that is really what we are looking to contribute as well as part of the Adani Group. This big drone that you see here is actually one of our flagship products for the defense vertical. This is for the Adani Defense Hermes 900. The technology transfer is through an Israeli partner, but the domestic production is really the key. A bulk of this entire drone manufacturing is actually indigenized and it is made in India. This is of course for defense applications. There are other applications for civilian purposes. We expect, for example, agriculture to be a big contributor to the overall civilian ecosystem of drones. There are other segments like survey, mapping, logistics, medicine deliveries, transmission line, health monitoring and so on. Those are expected to be big. The biggest part, however, we expect to be agriculture. In agriculture, for example, our work will be again for made in India drones, which will improve farmer livelihood and farmer outcomes. So, by spraying pesticides with a fraction of the water, a smaller quantity of pesticides, as well as better availability of labor, we expect the drones to give a lot of, I would say, benefits in terms of improving farmer output in the days to come. So, that's something which we look forward to contributing. As part of the ecosystem, we are expecting the ecosystem to grow, and that will result in every player growing along with the ecosystem. Yeah. जो हमारी कंपनी वैसे यूएवी एंड सिमुलेटर्स में है। यूएवी हर तरह के ड्रोन्स बनाती हैं, माइनिंग में, टेक्नोलॉजी में और माइनिंग, आर्मी, डिफेंस, हेल्थ केयर, सब में हम अपने ड्रोन्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम शो कर रहे हैं वो स्पेशली एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चरल में ये हमारा फर्स्ट है कैमल सिस्टम का कैम जियो स्कैन। ये हमारा सर्वे एंड मैपिंग के लिए यूज होता है, स्पेशली ये देखने के लिए कि कहाँ पर क्या है। और कैमरा सिस्टम इसमें डिफरेंट हम पेलोड यूज कर सकते हैं, आरजीबी कैमरा यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पेलोड यूज कर सकते हैं हम इसमें कि थर्मल का है, अगर हीट ऑफ है, हीट कोल्ड वाटर बॉडी का अगर हमने इंस्पेक्शन करना है तो हम डिफरेंट पेलोड इसमें यूज कर सकते हैं अपने। और ये बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि इससे क्या होता है, आप ऑब्स्टेकल फाइंड कर सकते हैं और आप मैप कर सकते हैं कि कितना आपका टोटल एरिया है और आपको कहाँ कहाँ हार्वेस्ट करना है। प्लस किसी भी टाइप का आप इसमें जो ये क्योंकि जियो स्कैन है तो आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के कैमरा यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है हमारा कृषि प्रधान देश में, क्योंकि हमारा एक देश कृषि प्रधान है और जितना यहाँ पर ये कृषि होता है वो कहीं नहीं होती है, किसी कंट्री में नहीं होती है। और इसी के साथ हम एक और प्रोडक्ट लेके आए हैं अपना, आइए दिखाते हैं। ये है, ये एग्री मास्टर है। ये एक मल्टी रोटर प्रोडक्ट है। मल्टी रोटर प्रोडक्ट क्या होता है आपका कि जो प्लेन विंग से अलग होता है, कि जैसे जो ये आप देख रहे हैं ये प्लेन विंग्स है, एक प्लेन की तरह काम करता है, फिक्स्ड विंग्स होता है। ये मल्टी रोटर है, ये वर्टिकली आपका उड़ेगा, जिससे क्या है कि आपकी जो क्रॉप है उसको कोई हानि नहीं होगी। प्लस ये 3 to 4 मीटर की हाइट पे उड़ता है और इसका 10 लीटर का कैपेसिटी होता है, जो कि 18 to 25 मिनट में आपका 3 to 5 एकड़ एरिया कवर कर देता है। प्लस ये ऑब्स्टेकल रिमूवल भी है, ऑब्स्टेकल फाइंड सॉल्यूशन भी है। ये क्या करता है, ऑब्स्टेकल को फाइंड करता है कैमरा से और ऑब्स्टेकल को डाइवर्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है हमारा।
हमारा बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन एज अ सर्विस का जो एंटिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑलरेडी 30 तरीके के ड्रोन और 45 तरीके की ड्रोन सर्विसेज में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी किसान ड्रोन यात्रा आज से 4 महीने पहले फरवरी 2022 में लॉन्च किया था, जिसके अंदर कि हम किसानों और कृषि के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे जो ड्रोन है वो आज के टाइम पे जो भी किसान की खेती है और पैदावार है उसको बढ़ाने में सक्षम है। 6.5 मिनट में हमारा कृषि ड्रोन 1 एकड़ पूरा स्प्रे कर देता है पेस्टिसाइड, जिसमें कि 10 लीटर का ही पानी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि आपका जो 90% पानी है और 75% पेस्टिसाइड जो है वो सेव होता है। साथ ही साथ जो हमारे कृषि दोस्त हैं जो कि पेस्टिसाइड स्प्रे करके करते हुए अपने खेतों में उस चीज़ को सूंघते हैं, उस चीज़ को सांस के अंदर लेते हैं, तो इस चीज़ से जानलेवा बीमारियां होती हैं, इससे भी वो बचाता है। हम एज अ गरुड़ एरोस्पेस सिर्फ कृषि में ही नहीं, साथ साथ हम सर्वेलेंस, हम सिक्योरिटी और काफ़ी ड्रोन मैनेजमेंट सर्विसेज में भी काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम 45 तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर की हम मैपिंग से लेकर के फायर फाइटिंग ड्रोन्स तक भी बना रहे हैं, ताकि हमारे पूरे भारत को जो हमारे मोदी जी का विजन है मेक इन इंडिया और डिजिटाइजेशन, इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाए। इफ्को फर्टिलाइजर्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने विश्व में पहली बार जो यूरिया है, जो कि 45 किलो बोरी के अंदर भरा जाता है और खेतों में ले जाकर छिड़का जाता है, उसको रिप्लेस किया एक 500 ml बॉटल नैनो लिक्विड यूरिया के साथ। आपको जब यूरिया खेत में ले जाना होता है तो उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ तो चाहिए, पर आप एक बोरी यूरिया के बराबर जो 500 ml की बोतल है, आप इसको अपने जेब में रख के ले जा सकते हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए जब मैं खेतों में जाने लगा तो मुझे पता लगा कि नैनो यूरिया को छिड़कने के लिए 125 लीटर पानी चाहिए और बाकी दूसरे जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसको छिड़कने के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी चाहिए। मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा है। फिर इफ्को की टीम के साथ बात करके हमने पाया कि हम कैसे ड्रोन के माध्यम से इसका स्प्रे का काम करें। तब हमने पाया कि ड्रोन के अंदर जो टंकी है, जो कि 11 से 12 लीटर की है, इसके अंदर 10 लीटर पानी है और 1 लीटर, आधा लीटर, पौन लीटर दवाई भरी जाती है। ड्रोन उड़ता है और 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर 1 एकड़ को कवर करके आता है। तो मैंने अभी तुरंत 2 फायदे बताए। नंबर 1, 90% पानी बचा। नंबर 2, 4 से 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर 1 एकड़ को स्प्रे करा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, 1 एकड़ के लिए आपको कोई भी दवाई जैसे नैनो लिक्विड यूरिया है, ये 500 ml लगती है, पर जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो आप 25% कम लगाते हैं, यानी आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो 25% कम हुई। चौथी खास बात यह है कि जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो पत्ते अच्छे से साफ होते हैं। जब पत्ता अच्छा साफ होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा। जब फोटोसिंथेसिस बेटर होगा तो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा, और जब सूर्य की रोशनी बेटर लेगा तो हमारा प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा होगा, प्लांट हेल्थ बेटर होगा। हमारा अग्री ड्रोन है, 2 चीज है, मामूली बैटरी में भी है और हम लोग डेवलप किया, जो भी आप देख रहे हैं इधर, हाइब्रिड आईसी इंजन वाला है, वो पेट्रोल में चलता है। अभी क्या हो रहा है, अभी डाउन में पावर मिलने के लिए बहुत मुश्किल है। अभी इसके लिए हम लोग हाइब्रिड आईसी इंजन ड्रोन बना दिया। पेट्रोल कभी जगह में मिलता है और लाइफ टाइम भी ज़्यादा कर सकता है पेट्रोल इंजन में। अभी इसका एनवायरनमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट करता है। बैटरी को डिस्पोजिशन बहुत मुश्किल है, इसके लिए हम लोग आईसी इंजन में बना दिया। ये हाइब्रिड नाम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ये आईसी इंजन नीचे है, इसके ऊपर एक जनरेटर कपल्ड है। वो जनरेटर हाइब्रिड पावर में मोटर्स से प्रोपल करता है, सो उसके ऊपर मोटर प्रोपल होता है। और इसके लिए भी एक छोटी बैटरी है, अगर एयर में स्प्रे करने के समय इंजन फेल हो गया तो ये बैटरी सेफ लैंड करता है। सो उसके लिए हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट सेफ्टी करके। अभी ये बैटरी आपको 1 साल 2 साल तक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत छोटी बैटरी है। इंजन कम से कम 15 और 20 हज़ार एकड़ के बाद आप लोग सर्विस करना पड़ेगा। जो ड्रोन है ये बेसिकली हमने किसानों के लिए बनाया है, किसान भाइयों के लिए बनाया है। और इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये पूरा ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोनोमस मोड में। इसमें 6 मिनट में, 6.5 मिनट में 1 एकड़ ज़मीन में प्रॉपर स्प्रे हो जाता है।
और इसको हमने अलग अलग तरीके के क्रॉप, चाहे आप उसको राइस, वीट, कॉटन, मस्टर्ड, शुगरकेन, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, पपाया, गुआवा, मैंगो, हमने हर तरीके के ऑर्चर्ड्स हो या नॉर्मल क्रॉप सब पे इसको स्प्रे करके देखा है और इस पर एफिकेसी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमने 14 फीट गन्ने में करें तो भी ग्राउंड तक इसके ड्रॉपलेट्स पहुंचते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो इसमें फ्रंट और बैक में रडार लगा रखा है हमने, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और पीछे भी रडार लगा हुआ है। इसकी खास बात क्या है कि किसी भी ऑब्स्टिकल को देख के उसको अवॉइड कर लेता है और रीराउट करके बगल से निकल जाता है, ताकि किसी से टकराएगा नहीं, चाहे वो पतला सा खंबा हो, चाहे वो पोल हो पतला सा, या फिर एक सीमेंट का स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई तार भी हो, पेड़ हो, उससे बगल से निकल जाएगा। दूसरी, नीचे हमने रडार, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक रडार लगा रखा है, जिसका काम है, इसको हम बोलते हैं टेरेन फॉलोइंग। ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए फसल की हाइट जितनी भी है उसके ऊपर आप कितना ऊपर उड़ाना चाहते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जैसे मान लीजिए 18 फीट का गन्ना हो गया, 14 फीट का गन्ना है, उस गन्ने के ऊपर आपको फ्लाई करना तो आप हाइट फिक्स कर दीजिए, उस हाइट पे ही फ्लाई करेगा। तो अगर आपको वो दिख नहीं भी रहा है ड्रोन, तो भी वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से उतनी हाइट से फ्लाई करता चला जाएगा। ये ड्रोन हमने अभी आर्मी के लिए बनाया है। तो होता क्या है, दरअसल जब बहुत ठंडी हो जाती है नवंबर दिसंबर में, तो हवा का दबाव कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। उसकी वजह से कभी कभी सैनिक बीमार पड़ जाते हैं या कभी घायल हो जाते हैं, तो फिर उनको ऊपर से नीचे लाने में 15 घंटे से लेकर के 1-2 दिन तक लग जाता है। और चूंकि मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी नहीं जा पाता है ऊपर, और हेलीकॉप्टर के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो जो हमारे पोस्ट हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये क्या करता है कि आप सबके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पे कोई बीमार है, और वहाँ से फिर उनके जो ब्रिगेड होता है या बेस स्टेशन होता है, वहाँ से ड्रोन आता है उनके पोस्ट पर। तब तक ये स्ट्रेचर में जो मरीज हैं, घायल सैनिक हैं, उनको रख दिया जाएगा, और ड्रोन आएगा, उनको उठाएगा, 4 मिनट लगेगा, और फिर उनको मतलब आधे घंटे के अंदर चिकित्सालय में पहुंचा देगा। उस दौरान जब ये हवा में आ रहा होता है, उस दौरान इसका ऑक्सीजन, इसका तापमान, इसका और भी जो हेल्थ से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, वो सब चिकित्सालय को लाइव मिलता रहता है। डॉक्टर को जानकारी मिलती रहती है कि अभी हमारा मरीज किस हालत में है। हमारे सामने यहाँ पे देख रहे हैं, इस ड्रोन को इंडोविंग्स S सीरीज ड्रोन कहा जाता है। इस ड्रोन की क्षमता 25 किलोग्राम 20 लीटर फ्लूइड उठाने की है। इसके अंदर ये 15 मिनट में चार्ज होकर 18 मिनट हो सकता है। इसके अलावा हमने इस ड्रोन की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब भी लोग किसी भी जगह पे, किसी भी खेत में फ्लाई करते हैं अपना ड्रोन, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं, तार होते हैं, कुछ अनइवन पेड़ पौधे कहीं से होते हैं। तो ये ड्रोन AI यूज करके और अपने विजन बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अपने मिलीमीटर रडार और लाइडर सेंसर जैसी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके ये ड्रोन सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड कर सकता है, किसी भी तरह के पहाड़ी टेरेन को अपने आप क्लाइंब कर सकता है। इस तरह के सारे फीचर्स हमने इस ड्रोन के अंदर दे रखे हैं। और एज ए कंपनी, एज ए मैट्रिक्स जियो, हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल खेती के अंदर, फसलों के अंदर किस तरह की कमियां हैं, उनकी उसमें किस तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, या कहाँ पे वो बड़े बड़े फॉर्म्स के अंदर कहाँ पे इस तरह की दिक्कतें हैं, कहाँ सिंचाई की दिक्कतें हैं, उन सब चीज़ों को ड्रोन से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका पता लगाते हैं, और उसके बाद उन जगहों का पता लगाने के बाद में उसके ऊपर बड़े ड्रोन से, जिनके अंदर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल के उसके ऊपर स्प्रे करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको किसानों को पहुंचाते हैं। तो ये हमारा चीज़ है। तो आने वाले समय में लगभग ऐसा होगा कि एक फार्मर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जान पाएगा कि उसके बड़े फॉर्म के अंदर किस किस तरह की दिक्कतें हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं, और कितना पेस्टिसाइड उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि उसके अंदर उसकी पेस्टिसाइड की बचत भी होगी। और स्प्रेइंग ड्रोन से जो नुकसान है, जो हाथ से करने से जो नुकसान हुआ करते हैं, वो जब ड्रोन से उससे छिड़काव होगा तो उसके फ़ायदे होंगे। ये हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च है DFI में। इसका नाम है सूर्य शक्ति 16L। ये स्मार्ट किसान ड्रोन है। इसके काफ़ी सारे फीचर्स है।
इसके अंदर है ना स्मार्ट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम है, ताकि कोई अगर पेड़ आ जाता है आपके फील्ड ऑपरेशंस में तो ये अपने आप ऑब्स्टिकल अवॉइड करके अपना ऑटोनॉमस मिशन कंटिन्यू रखता है। देन वीव गॉट टेरेन फॉलो, इसके अंदर ये जो टेरेन है वो उसको फॉलो करते हुए चलता है। प्लस इसके अंदर 4 नॉजल्स है, तो इसका स्वाथ कवरेज जो है ज्यादा मिलता है हमें। और प्लस इसके अंदर इसकी यूनिक इंडिजिनियस डिजाइन इसीलिए ताकि ये शेकिंग और वॉबलिंग ना करे। किसान को ये बहुत तरीके से फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें किसान का टाइम बचता है। हम अगर देखने जाए तो 15 मिनट में ये 3.5 से 4 एकड़ कवर कर लेता है। फिर इसमें काफी सारा फर्टिलाइजर इनपुट कॉस्ट बचता है किसानों का, ओवर यूज ऑफ केमिकल बचता है, इसमें 90% हमारा वाटर सेव होता है। तो किसान को इसमें काफी सारे फायदे, हेल्थ हजार्ड से बच जाता है किसान, क्योंकि केमिकल को टच होने से काफी सारी डिजीजेस होती है, स्किन डिजीजेस, तो उससे वो बच जाता है। प्लस इसकी बैटरीज भी जो है हम यहीं पे इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 12 स्मार्ट बैटरी, सिंगल बैटरी आती है। 15 मिनट में ये 3.5 से 4 एकड़ कवर कर लेता है। तो किसान के लिए काफी फायदेमंद है। और हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल हम किसान के खेत में जाके हमारे पायलट्स किसान को स्प्रे करते हैं, पर एकड़ हम उससे चार्ज करते हैं। This is a indigenously developed drone made in India, made in Bangalore. It's used for pesticide spraying. It can cover a wide range of activities. In a single day, it can do 40 to 50 acres. Comes with a 2-liter tank. It also comes with a 25-minute battery pack, right? Some of the key advantages, it also comes with a lot of software systems for managing the entire ecosystem of drone operations for farming, from mobile apps to web applications using AI for precision farming, right? It's currently done over 10,000 acres in India. We have deployed in about 22 states. It's currently being used by 7 out of the top 10 pesticide companies in India. It has VRT technology. We can essentially control the droplet size of the nozzles from 100 to 350 microns. We have a couple of very interesting products for agricultural application. The flagship product is Avio M1, our mapping drone. So this is completely in-house designed and developed by us. So we can say it as a made in India product, supporting the PM's vision of Atmanirbhar Bharat. So this drone has 2 capacities. One is with the RGB camera. It can capture the data in the agricultural field for crop growth monitoring and yield prediction. And the same drone can also be fitted with multispectral camera. So the multispectral camera can help you to identify in the entire farm field where the crops are healthy and where the crops are unhealthy. So these 2 things can be identified using the multispectral camera payload. So we have built an agriculture spraying drone, which is very efficient. So using this drone, we need only 10 liters of water instead of 200 liters, which is needed for acre. So a 90% reduction in the water, and the operator doesn't have any health hazards. So farmer can safely and reliably spray the pesticide around, and the pesticide will be uniformly covered across the field so that the negative externalities are very minimal. So on top of this, apart from the spraying drone, also we are creating different payload systems for various operations in agriculture, like direct seeding, pollination, fumigation, and also fertilizer spreading. The idea is, if a farmer buys a drone from us, he has to be able to use it for multiple purposes using across the year. So through this, we are also creating the training facilities and also standard operating procedures that are needed for the spraying pesticides using this drone. So all this makes the solution very affordable, safe, reliable to the farmer. Thank you. हम इधर एग्रीकल्चर ड्रोन लेके आए हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन की हमारी जो कैपेसिटी है वो 16 लीटर की है। 16 लीटर कैपेसिटी में हम फार्मर को 15 मिनट के अंदर 3 एकड़ जितना स्प्रे करके देते हैं। जैसे कि खेती के अंदर फार्मर को जो गन्ना रहता है, जैसे कि हाइट वाले क्रॉप रहता है, उसके अंदर स्प्रे करना रहता है, तभी बहुत डिफिकल्ट पड़ती है। जैसे कि पैडी है, टूअर है, फिर मस्टर्ड है, उसके अंदर चल के मैन्युअली स्प्रे करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो ज़्यादा है और 15 मिनट के अंदर 3 एकड़ जितना स्प्रे करता है। और इनके अंदर जो नॉर्मल कॉस्ट रहता है उससे बहुत सारे कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा एरिया एफिशिएंटली कवर कर पाता है। हमारे ड्रोन के अंदर ऑब्स्टिकल सेंसर है, जैसे कि खेतों के अंदर खंबा रहता है, जाट रहता है, तो वो ड्रोन ऑटोमेटिकली वहां जाएगा और रुक जाएगा। हमारे पास इसके अंदर टेरेन सेंसर है। टेरेन सेंसर से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो टेरेन रहता है, हिली एरिया रहता है, उनके अंदर ड्रोन ऑपरेट कर पाओगे। इसके लिए हमने इसके अंदर टेरेन सेंसर प्रोवाइड किए हैं।
और हमारी ड्रोन की कॉस्ट होती है 4.5 लाख से स्टार्ट होता है और इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉडल है। हमारा जो 16 लीटर वाला जो ड्रोन है वो 7.5 लाख से का है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.primeuav.com। तो ये जो ड्रोन्स हैं जो आजकल खास तौर से जिसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं उनके लिए, वो है एग्री स्प्रे ड्रोन। तो अभी ये जो नई स्कीम आई है सरकार की स्ममाम के तहत में, जिसमें जैसे ट्रैक्टर वाली फैसिलिटीज़ होती थी, अभी ड्रोन भी उसी कैटेगरी में स्ममाम स्कीम में चला गया। उस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक के ड्रोन पर सरकार की छूट दे रही है। वो छूट कोई भी CHC और जो उनसे FPOs जुड़े हुए हैं वो लोग ले सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 10 लाख रुपए तक की अगर है, 10 लाख रुपए सब्सिडी के मिल जाते हैं। 6 लाख में से भी 5 लाख से ऊपर एग्री इंफ्रा फंड से वो मिल जाते हैं। तो 70-80 हज़ार रुपये लगाकर एक फार्मर तकरीबन साल के 10 से 12 लाख रुपए की कमाई कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत रिवोल्यूशन होने वाला है। और इसके अलावा उसकी 25% कॉस्ट भी कम होने वाली है। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ मिलेंगी फार्मिंग एक्टिविटी में, और उसके अलावा जो किसान की वो कीमत कम हो जाएगी, वो एक अलग काम होने वाला है। तीसरा काम ये हो रहा है कि जो 2-3 एकड़ एक दिन में काम कर पाते थे मैनुअल लेबर के साथ, ड्रोन के साथ वो एक दिन में 25 से 30 एकड़ काम किया जा सकता है। तो ज़्यादा काम कम समय में कम कॉस्ट पर ये अब उपलब्ध होने वाला है आम हमारे रूरल भाई बहनों को, उनके फार्मर्स के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट होने, ये वो टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने वाली है। तो इसी तरीके से थोड़े दिन के बाद जो और तरीके के ड्रोन हैं, जिसमें खास तौर से हम बोलते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा लगे होते हैं, वो सॉइल हेल्थ, वाटर हेल्थ, क्रॉप हेल्थ, डिजीज़ मॉनिटरिंग, ये सब वो काम कर पाएगी। वो सब काम करने के बाद ये जब डेटा सारा कलेक्ट हो जाएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव एनालिसिस लग जाएगा तो ये बताया जा सकेगा कि क्या ग्रो करना चाहिए, किस इलाके में, कितना उसकी सॉइल की कंडीशन है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब बताया जा सकेगा। तो फार्मर की जो इनकम डबलिंग की बात हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो वो ऑलरेडी ये जो जितनी टेक्नोलॉजी है ये सब उसमें बहुत अच्छा योगदान करने वाली है। Hello, we are Tech Eagle Innovations and this is our flagship product Vertiplane X3. It has a higher speed of 120 km per hour and it can go up to 100 kilometers of range with carrying 3 kgs of payload, and it can take off and land vertically, and then it will use one motor for cruising. So that motor will provide it the range, and we can use it for healthcare, hyperlocal and any kind of delivery. So basically we have done the trials with the many different state governments in the healthcare only. So this drone is capable of carrying any type of payload up to 3 kgs with a range of 100 kilometers. जिस तरह से अभी हम सभी के हाथों में स्मार्टफोन है, उसी तरह से आने वाले समय में हमारे हाथों में ड्रोन रिमोट होगा। और इस महोत्सव से मिली जानकारी के अनुसार इतना कह सकते हैं कि आने वाले समय में कृषि जगत में भी ड्रोन का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। कृषि जागरण आपको ऐसे ही जानकारियां देता रहेगा। तब तक आप देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।